नमस्कार दोस्तों और वेलकम टू आवर YouTube channel. So in this video lecture series we are going to study about the new topic or new subject known as mathematics. Known as mathematics. So this subject or topic is very important for the various post graduation competitive examination to get into the higher studies. So the exam that have this topic is GATE. You have also IIT JAM. Also this topic is important for the engineering services preliminary examination that is conducted every year by the UPSC. For the GATE, this generally students are from the engineering background, so this subject generally known as engineering mathematics. For the IIT JAM students or for the to get for the MSc, this subject or this topic is known as mathematical models. Although the syllabus is almost same for the both GATE as well as for the IIT JAM. Okay, so there is no need to worry. For the engineering service examination, this although by the name it suggests that the engineering service is for the engineers, so that's why the topic is also known as engineering mathematics there. Okay, so generally from our team analyzation, GATE generally having, and also this year they can clearly mention that you almost have 10 to 15 marks, 10 to 15 marks from this topic, from this mathematics topics. For the IT JAM student also there is 8 to 9 marks and more also. Okay, so this is a verse or minimum marks. You have 8 to 9 marks from this topic. Generally there are more marks from these topics as per our analyzation we have. Okay, so generally you have sometimes the marks can be going up. Okay, sometimes the marks can be from 13 to 15 marks also. For the engineering pre-examination also you have also 8 to 10 questions, so that weightage could be more than 20 marks. Okay, so if the 2 marks question but the question is of 1.66 marks. Okay, so that's why this topic or this subject is very important for the post graduation examination clearly. Okay, so in the mathematics the topics that are going to be discussed, first is your linear algebra. So algebra on the linear elements. So generally the topics are matrices and determinants. Next you have calculus. In the calculus part we will see about the differentiation and integration. Then you have also limit study भी आप इसमें calculus वाले part में करते हो, ठीक है. Next you have differential equation, solution of differential equation, first order differential equation, you have second order differential equation, a lot of differential equations. Okay, next you have vector calculus भी आप देखेंगे इसमें. vector calculus का मतलब you have a divergence, you have a curl. Okay, so अगर आप फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं या फिर इलेक्ट्रिकल से हैं, तो ये टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट करता है. EMFT के लिए भी आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके पास, ठीक है. कैलकुलस में आप, हाँ जी, एक डाउट आया किसी का, कैलकुलस में हम टेलर सीरीज भी पढ़ते हैं. यस, टेलर सीरीज वी विल गोइंग टू बी डिस्कस इन दैट केस. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो आप इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है, पहले न्यूमेरिकल मेथड होता था. दिस ईयर द न्यूमेरिकल मेथड्स आपके पास सिलेबस में नहीं है. ओके, तो हम प्रोबेबिलिटी भी पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी भी इस टॉपिक्स में पढ़ेंगे. क्लियर? So this is generally the topic of discussion for the mathematics. Also complex number discussion is also in the mathematical parts. So all the topic is for the graduation point of view, who have studied in their graduation part. Okay, so let's start our first topic. Okay, so the first topic that is going to be discussed is linear algebra.
सो लीनियर अलजेब्रा बहुत ही इजी और स्कोरिंग टॉपिक है। जनरली इस टॉपिक में से आपके पास 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 2 या 3 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, या तो एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, ठीक है, और बाकी 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अगर 2 मार्क्स का आया पेपर में तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अगर 1 मार्क्स या 2 या 3 मार्क्स का है तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन 1 मार्क का आएगा और 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा में जनरली जो हम डिस्कस करते हैं वो क्या होता है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। किसके बारे में पढ़ते हैं हम, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। So in the determinants, what are the important questions that are going to be discussed in the GATE as well as for the IIT JAM is you must know about the basics of determinants and matrices. So आपको पहले कि कितने टाइप्स के मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनवर्स कैसे निकालना है, एडजॉइंट कैसे निकालना है। सो अलग अलग चीजें हम सारी किसमें देखते हैं, बेसिक्स में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आइगन वैल्यूज का क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज फ्रॉम द मैट्रिक्स, ओके। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वेरी वेरी इजी टॉपिक भी है इसका, ठीक है। और अगला टॉपिक आता है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इट इज अ सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कैसे आप 3 या 2 वेरिएबल्स इक्वेशंस का मैट्रिसेस की हेल्प से, एक्लन फॉर्म की हेल्प से कैसे सोल्यूशन निकाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे ऑलवेज यू हैव अ क्वेश्चन। आल्सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालना, रैंक मैट्रिक्स का कैसे निकालना है, ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहता हूँ यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट नोट देना चाहता हूँ सभी बच्चों के लिए। जो IIT JAM के स्टूडेंट हैं उनके लिए रैंक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी गेट वालों स्टूडेंट्स के लिए रैंक पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ IIT JAM, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ IIT JAM, ओके ओके। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जनरली कहाँ से बेसिक सभी कर लेते हैं, आइगन वैल्यू और सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में सभी को दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ऐसा मतलब नहीं है कि हम बेसिक्स नहीं पढ़ रहे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स आपने सभी ने 10th या +2 की क्लासेस में पढ़ लिया है, तो यू नो द बेसिक्स ऑफ दैट, ओके। सो इन द फर्दर क्लासेस वो आपके पास गेट और IIT वाले हैं वो आपकी टेस्ट करना चाहते हैं कि आपने फर्दर जो पढ़ा है उसकी आपको कितनी डीप नॉलेज है और कितनी नॉलेज है, ठीक है। क्योंकि भाई IIT का पेपर है तो ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन डालेंगे, तो आपके पास बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। गेट और IIT JAM के लिए आपके पास हुआ नहीं होना चाहिए, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि बेसिक्स क्या है, तो आपके पास बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, बेसिक्स से पढ़ते हैं स्टार्ट, ठीक है। सो मैट्रिसेस, सो फर्स्ट मैट्रिक्स, सो हाँ जी बताइए मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। यस 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 यस, वेरी गुड, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है आपके पास, मैट्रिक्स इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा में क्या है, आपके पास लीनियर नंबर्स हैं तो उनको क्या करना है, आपने रिप्रेजेंटेशन करनी है। सो इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। हाँ जी, तो हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स में नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मैट्रिक्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द रेक्टेंगुलर एरा, इन द रेक्टेंगुलर एरे। सो कैन आई से व्हाट इज द मैट्रिक्स नाउ, इट इज representation of numbers in a rectangular era. It is an representation of numbers in rectangular form, ठीक है जी। समझ आया कि नहीं आया, यस और नो, यस और नो, यस, ठीक है। सभी को बेसिक क्लियर है कि आपके पास मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेक्टेंगुलर नंबर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, क्लियर है जी, ठीक है। सो कैसे देखिए, मान लीजिए आपके पास
1 2 3 6 -2 -5 -6 -7 -3 -4 5 8, ये आपके पास नंबर थे तो आपने इनको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, सो जनरली रिप्रेजेंटेशन इससे क्या हो जाती है कि जनरली अगर हम इसको लीनियर वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो यू नो हाउ मच लेंथ or how much difficulty to access the data, that is very if you have a long data you have, okay, so clear। so मैट्रिक्स को क्या हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरा। क्लियर है जी। सो इसमें देखिए यू हैव रोज, यू हैव रोज, यू हैव रोज। सो कैन आई से दिस इज नथिंग बट रोज। और हॉरिजेंटल लाइंस को हम क्या बोलते हैं, रोज। सिमिलरली वर्टिकल्स लाइंस क्या होंगी, वर्टिकल्स लाइंस क्या होंगी आपके पास, वर्टिकल्स लाइंस क्या होंगी आपके पास, वर्टिकल लाइंस देखिए जल्दी प्लीज, वर्टिकल्स लाइंस क्या होंगी आपके पास, कॉलम। वर्टिकल लाइंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। तो अगर मैं बताऊं कि मुझे -6, ये आपके पास लेट्स सपोज -6 है नंबर, तो हम ऐसे थोड़ी डायरेक्टली बता देंगे कि -6 है। तो -6 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये भाई लेट्स सपोज एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, आप कहते हो कि हाँ जी मैं पढ़ता हूँ, तो आप ऐसे कैसे थोड़ी कह सकते हो कि हाँ भैया हम पढ़ते हैं, तो आप पहले बताओगे ना कि कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, कौन से ईयर में पढ़ते हो। तो उसी तरह से इस -6 का हमें क्या बताना पड़ेगा, एग्जैक्ट लोकेशन बताना पड़ेगा मेरे को। जैसे कि अगर आप बात करें कि जैसे कोई भी इंसान अगर अपनी कंट्री में रहता है तो हम पहले क्या बोलते हैं, उसकी कंट्री क्या है, फिर उसके बाद में पूछते हैं कौन सी स्टेट में रहता है, फिर हम उसका कंप्लीट एड्रेस बताते हैं। तो सिमिलरली मैट्रिक्स में भी हमें इस पूरे नंबर का बताना पड़ेगा कि ये नंबर कहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये कौन सी, देखिए पहले तो इसकी रो कौन सी है। सो -6 नंबर कहाँ पे प्रेजेंट है, -6 नंबर की अगर मैं बात करूं, इट इज प्रेजेंट इन द सेकंड रो, it is present in the second row and third column, it is present in the second row and third column। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है सभी को, ठीक है। तो हर बार अगर मैं 2 की बताऊं, 2 की, तो 2 की लोकेशन क्या होगी, 2 की लोकेशन क्या होगी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो हम क्या करते हैं कि इनको बारी बारी रिप्रेजेंटेशन करने की बजाय हम इसका एक शॉर्टकट बना लेते हैं, क्या शॉर्टकट होगा जी, ठीक है। तो हम जनरली एक मैट्रिक्स है, अगर आपके पास मैट्रिक्स है, तो आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसके एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद AIJ with base m and n, ओके। सो इस पूरे मैट्रिक्स को हम अब कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, AIJ m and n, ठीक है। तो AIJ का मतलब हेयर, AIJ का मतलब अगर देखिए AIJ, तो AI का मतलब, I का मतलब रो, I का मतलब रो, J का मतलब कॉलम, ठीक है जी। तो अगर मैं प्रीवियस केस में देखूं, तो यहाँ पे -6 था, तो इसकी -6 इज नथिंग बट एन एलिमेंट A 2 3 का मतलब दूसरी रो तीसरा कॉलम, ठीक है। तो AIJ is nothing but having ith row and jth column, क्लियर है जी, ठीक है, ओके। तो उसके बाद इस मैट्रिक्स की, ओके, तो ये m/n क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए m/n क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितनी रोज और कितनी कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इस केस में कितनी
नंबर ऑफ रो है, कितनी नंबर ऑफ रो है, 3, और कॉलम कॉलम 4। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4, ठीक है। तो m बाय n क्या है, m बाय n रिप्रेजेंट्स m बाय n रिप्रेजेंट्स m बाय n रिप्रेजेंट, let me marks a line in this case, ओके। सो m बाय n क्या है आपके पास, ठीक है। सो m बाय n इज नथिंग बट m बाय n इज नथिंग बट m बाय n इज नथिंग बट m बाय इज ऑर्डर और साइज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। साइज और ऑर्डर बोलता है, जिसमें m क्या होती है आपकी टोटल नंबर ऑफ रोज, m क्या है टोटल नंबर ऑफ रोज, और n है आपकी, n क्या है जल्दी बताइए, n है आपकी नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर है जी, क्लियर है। सो दिस इज m बाय n इज साइज, ith और jth का मतलब क्या है, उसका रो और कॉलम पे कौन सा रो और कॉलम पे आपका नंबर प्रेजेंट है, ठीक है जी। तो मैट्रिक्स क्या है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर in the form of column and in the form of column and, yes, clear, yes, you are right, okay। so generally a matrix को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, it is, so अगर m by n का, अगर m by n का मैट्रिक्स है, m by n का मैट्रिक्स है तो m रो होंगी उसमें, क्लियर है, और n कॉलम होंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे ऐसे कितने कॉलम है जी, m, और कॉलम कितना है 1, ठीक है। सो सिमिलरली अगला एलिमेंट क्या होगा, a12 फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, a22, क्लियर। सो am2 इस कॉलम का लास्ट एलिमेंट क्या होगा, am2। सिमिलरली हाउ मेनी रोज हाउ मेनी कॉलम्स वी हैव, an, सो ये क्या हो जाएगा, सॉरी रो इज फर्स्ट, सॉरी रो इज फर्स्ट, सो पहले रो आएगी हमेशा, ठीक है, देन कॉलम, ये nth कॉलम है, ठीक है, a2n फर्स्ट, दिस इज amn, दैट्स ऑल, ओके, क्लियर। सो दिस इज योर मैट्रिक्स aij mn। सो आई कहां से कहां वेरी करेगा, आई वेरी करता है 1 से लेके m तक, मैक्सिमम वैल्यू रो की कितनी हो सकती है 1। सिमिलरली j 1 to n रिप्रेजेंट करेगा, 1 to n रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है जी, कोई डाउट है तो बता दीजिए, ओके। सो अगली एग्जांपल, एक एग्जांपल से और क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। सपोज यू हैव अ मैट्रिक्स, सपोज यू हैव अ मैट्रिक्स 2 3 1 4 5 6 7 8 9, ठीक है, सिंपल मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले बता दीजिए what is the size of this matrix, what is the order of this matrix, what is the order or size of this matrix। so order simple क्या होगा, m by n, how many rows how many columns, how many rows 3, and how many rows how many rows you have 3, how many columns 3, so order इसका कितना है 3/3, ठीक है जी, ओके ओके। मेरे को बताइए अब कि a31 एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, a31, सो a31 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, कॉलम क्या होगा फर्स्ट, सो थर्ड रो, दिस इज थर्ड रो, कॉलम फर्स्ट, तो कौन सा एलिमेंट हुआ 7, कौन सा एलिमेंट हुआ 7, क्लियर है जी, ठीक है। सो सिमिलरली अगर मेरे को बताएं वैल्यू a22 की वैल्यू बताए, a22 की वैल्यू कितनी होगी
A22 is 5. Yes, this is second row, second column. Clear है? Okay, so this is a basic of your मैट्रिक्स. ओके, सो हमेशा कोई भी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अगर ए आई जे, तो हमेशा उसमें पहले क्या आता है, रो. हमेशा पहले क्या आता है, रो, देन यू हैव अ कॉलम. ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है. ठीक है, जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जनरली स्टूडेंट्स गलती कर लेते हैं कि पहले रो आएगा या पहले कॉलम. ठीक है, तो पहले रो आएगा, पहले रो देन कॉलम. तो ये इनके देखिए आर और कॉलम का आर, सॉरी रो का आर, कॉलम का सी, तो ये सिंपली क्या बना, आर सी. सिंपल क्या बना, आर सी. और आजकल तो आईपीएल चल रहा है, तो आरसी का मतलब रॉयल चैलेंजर. ठीक है, तो ऐसे याद रखना, रॉयल चैलेंजर्स के नाम से याद रखना, आपके पास आरसी आएगा. ठीक है जी, तो पहले आर और बाकी आरसी का मतलब बाकी स्टूडेंट्स को भी पता है. ठीक है, इंजीनियर्स को ज्यादा पता होगा आरसी का मतलब क्या है. क्लियर? ओके, सो यहां से आपके पास फैमिलियरिटी होगी. ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, क्लैरिटी क्या होगी. ऑर्डर यू नो, ऑर्डर इज m by n. देन यू हैव हाउ विल, रोज के बारे में पता चल गया आपके पास, कॉलम्स के बारे में पता चल गया, और आपके पास नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में भी आपको नॉलेज आ चुकी है. क्लियर है जी? तो आगे चलते हैं. वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक. वेरी ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, सो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. टाइप ऑफ मैट्रिक्स. सो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आप सबसे पहले पढ़ते हो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में. स्क्वायर मैट्रिक्स काफी पतली हो गई थी, लाइन चेंज कर ली थी हमने. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स. सो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है जी. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर हम सारे मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो वो सारे मैट्रिक्स हम मान के चलेंगे स्क्वायर है, अनटिल कभी मेंशन ना हो. ठीक है, मेंशन, स्पेसिफिक मेंशन होगा कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. ठीक है, तो अगर डिफाइन नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट क्या मैट्रिक्स लेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स. तो हमारा बाय डिफॉल्ट मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. तो स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स होता गया है. चलिए शुरू करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या. ठीक है, तो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स जो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, या जर्नली हम ऐसे ही चलेंगे. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो शॉर्ट में हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे एन. सो यहाँ पे देखिए आपने देखा कि n बाय n है, तो n बाय n का मतलब कि इसकी रोज भी बराबर हैं और इसकी कॉलम भी बराबर हैं, इसकी रो भी बराबर है. तो अगर रोज और कॉलम बराबर हो तो हम उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स. जैसे स्क्वायर में क्या होता है, आपके पास साइड सारी इक्वल होती हैं, उसी से इसकी डेफिनेशन बड़ी. ठीक है, सो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, व्हेन नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. यस और नो? क्लियर. तो इसको हम m और n दोनों किसके बराबर होगी, n के बराबर. m और n दोनों किसके बराबर होगी जी, n के बराबर. ठीक है, तो अगर इससे पहले हम मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे बताते थे, m by n. ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, n by n. और इसका स्क्वायर मैट्रिक्स अगर पहले से पता है आपको तो आप सिंपली ऑर्डर n से भी बात कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो बाय डिफॉल्ट
ठीक है, हम उसको एन एन ऑर्डर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो अगर स्क्वायर है तो ऑब्वियसली उसका ऑर्डर क्या होगा, एन बाय एन होगा। क्लियर है जी? ठीक है, तो इसीलिए 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 इसको स्क्वायर मैट्रिक्स को एक और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, आल्सो कॉल्ड एज एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहां से क्लियर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसकी एन रोज हैं, तो ऑब्वियसली उसका कॉलम भी कितना होगा, एन ही होगा। ठीक है जी? ओके ओके ओके, नेक्स्ट ओके। तो अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूं एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूं तो स्क्वायर मैट्रिक्स, टेक एन एग्जांपल ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स, टेक एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है, पीछे हमने देखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थोड़ी सी राइटिंग में प्रॉब्लम होगी, इसको दोबारा बनाते हैं सारा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 3 by 3। इसका ऑर्डर कितना होगा, 3 by 3। इसका ऑर्डर कितना होगा, 3 by 3। ठीक है, तो इसको जर्नली स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, 3 by 3 मैट्रिक्स की बात करूं, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, A11। ये एलिमेंट किसके बराबर है जी, ये एलिमेंट किसके बराबर था, ये एलिमेंट A11, ये A12, ये A13। ठीक है, इसी को अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें तो ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। इसका ऑर्डर कितना है, 3 by 3 ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, यू हैव अ डायगोनल, ठीक है, तो आपके पास 2 डायगोनल हैं। ठीक है, इसको हम मेन डायगोनल बोलते हैं, इसको हम मेन डायगोनल बोलते हैं, इसको हम मेन डायगोनल बोलेंगे। मेन डायगोनल की डेफिनेशन क्या होगी, जिसमें AIJ हैविंग I इज इक्वल टू J। ठीक है, तो प्रिंसिपल और मेन डायगोनल एलिमेंट में AIJ क्या होगा, I इज इक्वल टू J के बराबर होगा। तो इसको मेन डायगोनल को और दूसरा नाम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आपको क्या मिलेंगे, A11, A22, A33। क्लियर? सो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जिसमें इन जनरल AIG फॉर I इज इक्वल टू J, दिस इज योर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। So whereas elements other than this diagonal element और दूसरे diagonal को हम बोलते हैं off diagonal elements। सो क्लियर है जी? यहां तक स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, क्लियर? तो प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में भी क्लियर है आपको, ऑफ डायगोनल के बारे में। और इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर है कि अगर यही आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता तो क्या उसमें डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू 1 1 2 2 2 3
A11 A22 A33 मिलता? नहीं जी, रेक्टेंगुलर में आपको ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं मिलती। जैसे इस केस में देखिए, अगर मैं इस तरह का मैट्रिक्स लूँ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लूँ, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स ही नहीं मिलेगा, आपको एक डायगोनल ही नहीं मिलेगा। क्लियर? ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल की बात होगी, में प्रिंसिपल डायगोनल की बात सिर्फ किस में होगी? आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगी। क्लियर है जी? तो अगला अगला अगर मैं बात करूं स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ, अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, नेक्स्ट है डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। सो नाम से ही पता चल रहा है कि जो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही प्रेजेंट होंगे उसे हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। क्लियर है जी? सो डायगोनल एलिमेंट्स, तो यहां पे देखिए मैं सिर्फ n से रिप्रेजेंट करूंगा, तो n का मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या होगा? आपको पता है ऑर्डर क्या होगा? n बाई n, जिसका ऑर्डर क्या होगा? n बाई n। वेरी मच इजी। ओके, सो डायगोनल एलिमेंट्स की कंडीशन क्या है? ए आई जे एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट जीरो होंगे? डायगोनल एलिमेंट्स के बराबर। तो डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है? i इज इक्वल टू जे, बट बाकी के सारे एलिमेंट जीरो करने के लिए this the elements are zero for which I is not equal to j. Clear? So this is the main condition for diagonal matrix. Clear है जी? So diagonal elements, diagonal matrix is the one in which principal diagonal elements are in which elements other than diagonal elements are zero, ठीक है? सो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें, सो द डायगोनल एलिमेंट्स अगर मैं यहां पे स्पेसिफाई कर दूं, डायगोनल एलिमेंट्स जीरो या जीरो हो सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मे और मे नॉट बी जीरो, बट द कंडीशन ऑन द ऑफ डायगोनल एलिमेंट दे मस्ट बी जीरो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ओके, एग्जाम्पल की बात करें, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बताइए क्या ये मेरा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं? तो डायगोनल एलिमेंट्स की फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए? इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सो एक कंडीशन क्या होनी चाहिए? इट शुड बी, सो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि डायगोनल की बात सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है और किसी में भी आपकी डायगोनल की बात ही नहीं होती। सो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो 1 0 0 या 0 5 0 या 0 0 4, ठीक है? तो क्या ये मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है? यस। क्यों है? क्योंकि ए आई जे एलिमेंट्स जीरो हैं। कब? जब आई नॉट इक्वल टू जे है। क्लियर है जी? सो क्लियर? यस और नो? तो डायगोनल मैट्रिक्स की बात क्लियर होगी। ओके, एक एग्जांपल और बताइए, मेरे को। क्या ये मेरा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है? क्या ये मेरा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है? यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस, इट इज मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ जी, अगर किसी ने डायगोनल नहीं बोला
तो उसका बेसिक्स ही नहीं क्लियर है, वो डीप में स्टडी नहीं करते। तो डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होनी चाहिए? पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यस, इसका ऑर्डर कितना है 3/3। और दूसरी कंडीशन क्या है कि aij एलिमेंट्स जब जब i नॉट इक्वल टू j है, क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? यस, दैट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, दैट्स व्हाई दिस मैट्रिक्स इज आल्सो अ डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर है? तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट 0 या 0 हो सकते हैं, बट बाकी के एलिमेंट्स को क्या होना पड़ेगा? 0 ही होना पड़ेगा। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज योर स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर तो समझ आता है। सो स्केलर मैट्रिक्स वेरी वेरी इजी। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा कि सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स, अब इस केस में देखिए पहले तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स है तो पता है कि भाई सिर्फ प्रिंसिपल मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, ये मेरे को पहली कंडीशन है कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। पहली बात तो ये है। ठीक है, दूसरी बात अब करते हैं। तो इस केस में स्केलर मैट्रिक्स में, ठीक है, all the diagonal elements are same or a constant for all I equal to j. For I not equal to j, the values are 0. क्लियर? सो सारे की सारी स्केलर मैट्रिक्स में क्या होनी चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स में अगर सारे के सारे प्रिंसिपल एलिमेंट्स क्या हैं? सेम है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो यहाँ पे देखिए पहली बात तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है जी। दूसरी बात ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ही प्रेजेंट है। और तीसरी बात ये स्केलर है। स्केलर क्यों है? क्योंकि सारे के सारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? सेम हैं। क्लियर? ओके, एक और एग्जांपल बताइए। क्या ये मेरा मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं है? क्या ये मेरा मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं? Yes, fast. You have to do the answer fast. This is very 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 easy questions. Okay, very basics question you have. Yes, it is a diagonal elements clear है, क्योंकि सिर्फ diagonal elements of diagonal elements 0 है। और दूसरी बात स्केलर है। Yes, it is a scalar because all the elements are same and that are equal to 0. So okay, k can be any integer और 0। ये इंटीजर भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। क्लियर है जी? कोई पॉइंट, कोई किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। ठीक है, तो बाकी की डिस्कशन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम अपर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम, ठीक है, रो मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रेस क्या होता है, इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम बाकी की क्लासेस में। ठीक है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल इफ यू लाइक अवर वीडियोज। ठीक है, एंड प्लीज शेयर अस अवर फीडबैक्स so that we will continuously trying to give your best content and the best possible. Soon we will try to give the more questions, okay, in the classes. Also please do subscribe our Telegram channel. That is link is given in the description. Also the Facebook channel or the Facebook group for the discussion as well as for the content related posts you will find on our Facebook channel that is known by the DG Study channel. Okay, so thank you. In the next class we will going to study about the next topic.